Okay, so hello everyone. Myself, Retractor Hitangshi Shah, and I'm from Ahmedabad Rotaract Club of Ahmedabad Transcend. And we welcome you, Mr. Nisar Kotecha, for this wonderful session. I hope it would be very insightful for all of us to know a lot about stocks. We welcome you here, and here are warm regards from the whole club of Rotaract of Ahmedabad Transcend. We also have our DRS Rotractor Nikhil Chaudhary here. I welcome him as well. So it's a warm welcome to all of you, and I hope you will enjoy. If you have any questions, any queries regarding this topic, anything related to it, you can put it up in the chat, and we also have a follow-up question answer round, so you can do that as well. So I hope you have a great time, and I hope you enjoy. Thank you. Yeah. So welcome once again, Mr. Nisar Kotecha, to this lovely session that you are going to conduct, and you are going to make it more wonderful, more insightful for all of our lovely audiences here. And just to know our stock guru for right now, let me give you some basic insights into his profession. Mr. Nisar Kotecha is pursuing a PhD in trading psychology and systems trading, and currently he owns a proprietary trading firm that runs fully automated algorithms since 2016, and his company is based in Vadodara. The company's name is ProfitFolio, of which he is founder and CIO, Chief Information Officer, and he is also SEBI certified and Government of India certified research analyst. His core niche lies in financial derivatives, especially exchange traded derivatives. And as he likes to put it, he loves to design the logic, hard code it, optimize it, back test it, people trade it, and deploy it live with real money. Over to you, Mr. Nisar, sir. Thank you very much, Rotaract Club, and Jai, you also. And thank you for such a kind introduction. Right. I guess I don't need anything else to speak right now. Right. Jai has given a good introduction. Now, before we start, I would like to ask the question, like how, which language are we comfortable to go with? I can go with Hindi, English, or Gujarati. You can mix it anyway. Majority Gujarati audience would be Hindi, and English would be fine. Yeah, we can go with English or Hindi. Yeah. Okay. Because there are many people who are not familiar with Gujarati, so it might be harder for them. Okay, fine. That's perfect. So we will go with Hindi or mix of Hindi and English. So hello everyone. Good evening and welcome to this seminar. I really hope that I'll try to make this not only fruitful, but my goal is to make it more actionable to you people, right? If you are here and if you are investing 1 hour with me, then at the end of this hour you should go back at your home, or you should, like, whenever you go back, you should have something in your hand, right? So without wasting further time, because hamara topic thoda sa, it is little bit on a specific niche, so I need some time there. So without wasting further time, I will share my screen and I'll start with the presentation. Host, can you allow me to share my screen? I guess I cannot. Yes, sir. Just a second. Yeah. Yep. Can you try now? Yep. I guess I can. Cool. Yeah. So guys, I hope you can see my screen. It will be visible. I have tried my level best कि मैं उसके font size थोड़े बड़े रखूं, because I know majority of you guys are accessing this seminar or webinar through your mobile phones. But still, if you cannot read anything, you can directly ask me and I'll repeat it again, right? Okay. I guess still people are joining and I'm getting admission request. So yeah. Anyways. So in today's session, we're gonna talk about an investment strategy, right?
अभी इस स्ट्रैटेजी के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले राइट सेट करनी पड़ेगी, राइट, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेमिनार. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है. तो इफ एनी ऑफ यू आर अ ट्रेडर, राइट, कि जिनको अच्छा ट्रेडिंग आता है प्रोफेशनल लेवल पे, देन आई वुड रिक्वेस्ट देम कि ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, सो उसको इस तरह से परसीव ना करें, राइट. अगर इसको आप कंपेयर करना चाहते हो, सो द बेस्ट एसेट क्लास वुड बी म्यूचुअल फंड्स. तो अगर इस स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस को अगर आपको कंपेयर करना है, तो हम म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट. And this is a very right time, right, guys? Because इस time पे if you are learning this strategy, right, आज Saturday है, Saturday night है, and you are investing time with me, so that's really good. अगर आप आज सीख रहे हो, so Monday से I really expect at least you will start, you know, observing this strategy, and gradually मैं आपको ये पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि how good and how efficient it is, right? Okay, so before we start, this is a common disclaimer, right? By any chance, you should not perceive this as an investment advice. It is just for the educational purpose, right? And there is a little technical error here. I am certified research analyst, but still not yet registered because of some technicalities from the SEBI's end. But yes, I am certified, right? So just clearing this out. I guess I lost the host permissions. Sir, can you just again share the screen? Okay, just a second. Okay, got it. Right. So सबसे पहले हमारे पास options क्या होते हैं? अभी the thing is that कि investable surplus है मेरे पास. हम लोग initially start करते हैं सबसे पहले, right? हमारी thought process क्या रहती है, हमारी psychology क्या रहती है, और why we go into equities. तो मैं वहां तक की जर्नी 2 मिनट में कवर करूंगा, right? So सबसे पहले हमारा asset class कौन सा रहता है, right? So the first asset class is cash. अगर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो मैं उसको cash पे रख रहा हूँ, right? Then there is an option of fixed deposit. दूसरा ऑप्शन होता है लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स, आई वुड से कि थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या उस टाइप की चीजें. देन देयर इज रियल एस्टेट कि जिसमें मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ. देन देयर इज गोल्ड एंड इक्विटीज, राइट. और ऑब्वियसली इनका CAGR जो परसेंटेज है वो इस तरह से ग्रो करता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल कैश की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके पास कैश पड़ा है तो 1 साल के बाद भी अगर मैं उसको देख रहा हूँ, इफ आई हैव 10 लाख रुपीज विथ मी ऑन हार्ड कैश है, तो 1 साल के बाद it will be 10 lakh only. So there is 0% appreciation on that asset, right? Next is fixed deposits. So fixed deposits के अंदर if I am putting in let's say 6.5, और normally मेरा rate of return क्या होता है 6.5%. ये अभी actually इससे भी कम हो गया, right? It is less than, like some people are just giving 4-5% only, right? So उससे भी ये तो कम हो गया. On an average in India, the inflation rates are at around 7%. Now ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट. व्हाई आई विल टेल यू. और दूसरा होता है लिक्विड फंड्स और वो सब जो हमको 7% से लेके 8-9% तक देते हैं रिटर्न. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और वो सब आ जाता है इसके अंदर, राइट. बट द थिंग इज दैट कि जितना वो ज्यादा रिटर्न देते हैं उतना उस बॉन्ड के अंदर का इनहेरेंट रिस्क होता है, विच वी एज एन इन्वेस्टर डोंट नो. समटाइम्स वो हमें पता नहीं चलता है कि वो रिस्क कितना होता है, राइट. हम पूरे डॉक्यूमेंट्स तो कभी नहीं पढ़ते. We just sign it out and give it to our broker कि हाँ ठीक है लगा दो पैसे, right. And next is real estate. So on an average, right, ये अभी आप कौन सी geographical location पे उसके ऊपर depend करता है, but this is like I have taken this from an authentic source, Bloomberg, और वहां से मैंने ये data लिया, and it says that on an average real estate grows in India at around 9-10%, right. The next is gold. So gold is having a little bit of higher rate of return, around 11% से लेके 12% CAGR तक वो बढ़ता है, और वो stable grow होता है because gold is accepted as a common platform, common currency across the globe, right. So उसकी एक अपनी importance होती है, right. And the last and the not least one is equities. So on an average हमारा जो Nifty है, right, so Nifty grows at a CAGR of 17%. If we check from last 20-30 years, अगर हम last 20-30 years का डेटा का एवरेज आउट निकालते हैं तो करीब निफ्टी है वो 17% से ग्रो करता है, राइट. और हर एक फंड मैनेजर का, एक्टिव इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक गोल होता है दैट दे बीट द इंडेक्स रिटर्न्स. तो हमारा गोल रहेगा कि हमको 17% को बीट करना है, राइट. नाउ इफ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर आप 7% से कम कुछ भी कमाते हो, इट मीन्स बेसिकली यू आर you are losing out on your capital, right. मेरा मिनिमम इन्फ्लेशन रेट को तो बीट करना ही पड़ेगा जस्ट टू सस्टेन माई परचेजिंग पावर, राइट. अभी मैं अगर 10 लाख में कुछ जो भी चीज बाय कर सकता हूँ,
शायद 1 साल के बाद वो 10 लाख की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, राइट? सो ये सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है। सो मेरा मिनिमम ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शुड बी 7%। सो ये मेरी रेड लाइन हो जाती है। इससे नीचे कुछ भी है ना, तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो माय हार्ड एडवाइस इज दैट कि यू शुड स्टॉप डूइंग दिस, राइट? डे 1 से आप इसको बंद कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर वेरी मच क्लियर कि हमें इक्विटीज में जाना है, राइट? अभी इक्विटीज में जाना है तो अभी हम थोड़ा साइकोलॉजी के अंदर जाएंगे थोड़ा सा, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी थिंक, हाउ इज आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट? सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी किस तरह से होती है? एक होता है डिस्क्रिशनरी मेथड। डिस्क्रिशनरी मेथड में क्या होता है कि वी आर गोइंग टू यू नो जस्ट ओके, सो इन डिस्क्रिशनरी मेथड हम लोग क्या करते हैं कि हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, या वी आस्क अ फ्रेंड और अ ब्रोकर और अ रिलेटिव, जो भी हमको टिप मिलती है हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जस्ट गो अहेड एंड बाय दिस स्टॉक। कितना लेना है वो हमें नहीं पता है, अभी कितने पड़े, 10,000, 20,000, 50,000, उतने के हमने स्टॉक्स परचेस कर लिए। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ। इफ आई हैड अ फाइट विथ मे बी माई गर्लफ्रेंड और माई वाइफ, तो मैं शायद डिसीजन बुरा भी ले सकता हूँ, राइट? और एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो ये मूड के ऊपर ज्यादा होता है, नॉट ओनली मूड बट यू आर गवर्न बाय लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट? अगर आप जा रहे हो और आपने सिग्नल क्रॉस किया एंड चालान कट गया, एंड देन यू आर टेकिंग अ डिसीजन कि मार्केट क्रैश हुआ, क्या करना, पैनिक में सब कुछ सेल कर दोगे, यू नो? सो दैट इज नॉट हाउ यू शुड डू इट प्रैक्टिकली, राइट? बट हम लोग मेजोरिटी, एंड बाय मेजोरिटी आई वुड से 80%, and this is not me saying but these are like real facts and figures from the authentic websites कि जो ये सब चीज बताते हैं कि हम लोग ऐसे ही डिसीजन लेते हैं, right? The next one is systematic method, right? So जैसे ही आप थोड़े से प्रोफेशनल की तरफ बढ़ते हो, प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बढ़ते हो, आपका एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है कि चलो कोई आके न्यूज में बताता है कि रिलायंस को बाय करो, ये होने वाला है, ये वो होने वाला है, यू विल एटलीस्ट गो यू नो एटलीस्ट ओपन दैट ऐप, कोई भी एक ऐप ओपन करोगे, उसके वजह से थोड़ा सा यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा उसको रिसर्च करोगे और फिर जाके एक प्रोसेस करोगे कि नहीं इतनी चीजें तो मुझे चाहिए, उसके बाद जाके मैं मेरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लूंगा इसके अंदर, राइट? सो माय फर्स्ट वन वुड बी कि अगर आप सिस्टमैटिक मेथड से जा रहे हो तो उसके अंदर एक होता है फंडामेंटल्स, राइट? सो फंडामेंटल्स क्या करता है हमारे लिए? जय, इफ यू फील लाइक आई एम गोइंग लिटिल फास्ट और सो, तो जस्ट इंटरप्ट मी और बोलना कि ये चीज रिपीट करो। मैं बहुत बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू बी एज स्लो एज पॉसिबल, राइट? श्योर। ओके, सो एक होता है हमारा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हम लोग पूरा रिसर्च करते हैं कि वेर इन वी अंडरस्टैंड कि कंपनी का यू नो बैलेंस शीट कैसी है, उसका फंडामेंटल्स कैसे है, प्रोमोटर्स की हिस्ट्री क्या है, उसमें भी बहुत सारी चीज होती है। क्वालिटेटिव भी रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव में प्रोमोटर की एथिकल पोजीशन क्या है। अगर कल सुबह इफ यू नो विजय माल्या कम्स बैक टू इंडिया और वो एक बड़ा वेंचर लेके आता है, बड़ा IPO लेके आता है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, अच्छी चीज आपको बहुत सस्ते में दे रहा है, बट स्टिल यू विल बी हेजिटेटेड बिकॉज ऑफ हिज एथिकल बिहेवियर इन पास्ट, राइट? आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ कमेंट हियर, बट जस्ट कि एक आप में एक थोड़ा सा हेजिटेशन तो यू विल फील, राइट? सो वो सब चीजें क्वालिटेटिव में आती है। फिर होता है क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यू नो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और वो सब चीजें हम लोग करते हैं, रेशियो एनालिसिस और वो सब, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ठीक है, ये कंपनी हमको थोड़ी अच्छी लग रही, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज टेक्निकल्स, जो आप देख रहे हो कि जो चार्ट्स पे वर्क करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग टूल्स यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू प्रेडिक्ट कि व्हाट वुड हैपन यू नो बाय सीइंग द पास्ट डेटा, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक प्रोबेबिलिटी निकाल के वो लोग वर्क करते हैं, राइट? एंड देन देयर आर सम न्यू टेक्निक्स इन द वर्ल्ड कि जो क्वांट AI और ML पे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उसके ऊपर चलता है। I'll give you 1 or 2 examples of AI and ML, and you will be shocked to know कि बड़े-बड़े hedge funds, वर्ल्ड के बड़े-बड़े hedge funds है, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, राइट? हमारे में क्या है कि we all are so obsessed with equities कि हम equities के बियॉन्ड कुछ सोचते ही नहीं, कि commodity market है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए भी। Then we have forex markets, आप USD INR है या यूरो INR है, whatever it is, आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, उसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर सकते हो, 1 साल तक 2 साल तक पोजीशन भी बना सकते हो, राइट? बट वो हमारे में उतना अभी नहीं है। वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स कि यू नो एक्विटीज। सो रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज करके वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड, इट इज यू नो उसके जो टॉप ट्रेडर, उसके ओनर है वो यू नो जेम्स सिमंस,
वो किस तरह से टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल या क्वांट मॉडल को यूज करके ये सब डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज. लाइक फॉर एग्जांपल इफ सैटेलाइट इमेजिंग का यूज करते हैं वो, वन ऑफ देयर एल्गोरिथम्स, आई रेड इट समवेयर. सो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि जो भी ऑयल के रिजर्व्स होते हैं ना, तो वो बड़ा सा एक वेल जैसा होता है, कुआं जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है. उसके ऊपर लिड रहती है टू कवर दैट, राइट. तो उसके ऊपर वो लिड इस तरह से है एंड देयर इज अ लिड हियर. तो उसके ऊपर सनलाइट आती है, तो सनलाइट से वो लोग लिड की डेप्थ मेजर करते हैं फ्रॉम द सैटेलाइट इमेज. और उससे वो लोग पता करते हैं कि व्हाट इज देयर उतना उसके अंदर कितना ऑयल रिजर्व्स है अभी. सो उसको वो जज करके एक कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, और उसके बेसिस पे वो लोग डिमांड सप्लाई भी फोरकास्ट करते हैं. और नॉट ओनली दैट, ये इन्फॉर्मेशन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट टेकिंग मिलियंस ऑफ पुटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू अ पोजीशन इज वेरी डिफिकल्ट. ये इन्फॉर्मेशन को वो लोग इंटरप्रेट करके उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, और वो क्रूड में पोजीशन लेते हैं, सिर्फ क्रूड में, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. वो लोग इवन ये भी देखते हैं कि इस बार कितने ट्रक्स आए और कितने ट्रक्स गए वहां से, राइट, जस्ट टू चेक दैट. So there are a lot of ways that people are using this kind of mechanism to understand the demand and supply, right. और उसके basis पे वो लोग एक position भी, बड़ी बड़ी position भी create करते हैं, right. Okay, so ये strategy के पास आप क्या expectations रख सकते हो, right, and why you should trade this strategy, और trade भी भूल जाओ, but why you should listen to me, right, कि आप मुझे सुनना क्यों चाहते हो. सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी की यूएसपीज मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि एक तो आपको बेरिश ट्रेंड में आपको एक एग्जिट दे देगा, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. तो मैं बाई कर रहा हूँ, उसको होल्ड कर रहा हूँ फॉर कपल ऑफ मंथ्स या मे बी 1 or 2 years ऑल्सो. एक टाइम आता है जब बेरिश ट्रेंड शुरू होता है, या फिर देयर इज ब्लैक स्वान इवेंट लाइक कोविड हो गया, या फिर सब प्राइम क्राइसिस 2008 का, या .com बबल जैसा कुछ भी होता है. सो तब मुझे इट शुड किक मी आउट, राइट. मुझे वो वहां पे खड़ा नहीं रहना है, वहां पे मुझे एग्जिट चाहिए. तो मैं आपको रूल बाय रूल सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन एग्जिट द पोजीशन एंड कट द लॉसेस इन मिनिमम. वर्स्ट केस सिनेरियोज हम बात करेंगे, राइट. इट सेफगार्ड्स फ्रॉम द वॉलेटिलिटी. हम लोग बफर लेके चढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू कीप अ स्मॉल, वी आर गोइंग टू कीप अ बफर इन सच अ वे कि छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस आ गए या फिर कुछ भी हुआ तो इट शुड सेफ अस फ्रॉम दैट, राइट. अभी अचानक से मार्केट गिर गया, दूसरे दिन अचानक से ऊपर आ गया, तो ऐसी चीज में यू वुड पैनिक एंड यू वुड एग्जिट. सो वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वॉलेटिलिटी से बाहर रखता है, राइट. इट वर्क्स वेल इन बुलिश ट्रेंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अ बाय साइड स्ट्रैटेजी, राइट. आपको एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए. आई सी लॉट ऑफ पीपल कि जो लोग आते हैं, बात करते हैं कि हाँ यूक्रेन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर व्हेनेवर वी आस्क देम कि इस इंफॉर्मेशन का आपको क्या यूज करके क्या फायदा, क्या हो रहा है एंड ऑफ द डे, तो दे वुड बी लाइक हाँ ठीक है, हमारा तो 20-25 हजार का म्यूचुअल फंड है और कुछ नहीं. तो वो सब एनालिसिस करने का कोई एंड ऑफ द डे बेनिफिट नहीं हो रहा है इन्वेस्टर को, राइट. सो हमारे में एनालिसिस आपको ज्यादा नहीं करना है. मैं आपको एक रेडीमेड प्लेट दे दूंगा, यू हैव टू जस्ट ईट दैट आउट, राइट. एंड गुड थिंग इज दैट कि आपको टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना. इट विल टेक 5 to 10 minutes एंड दैट टू वंस अ वीक और वंस अ मंथ, राइट. सो आप 10 मिनट तो हफ्ते में या महीने के एंड में निकाल कर यू कैन रिसर्च दिस आउट एंड देन यू कैन यूज दिस, राइट. एंड रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा इसके साथ में. ट्रस्ट मी, ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उसके लिए आई हैव स्पेंट thousands और मे बी इन lakhs, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड. और जो मैं whatever I'll teach you, right, that will be like the core essence of it. ये अगर आपको आ गया तो मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में आपको 70% तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा if you understand this logic, right. Okay, so first अभी हम लोग स्ट्रैटेजी की तरफ आ रहे हैं. So first हम लोग सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन, बट यूज करेंगे हम फंडामेंटल्स का, राइट. मैंने डिसीजन मेकिंग में आपको बताया था अभी that we are going to use fundamentals and technicals both and combine them to arrive at a decision, right. तो हम लोग स्टॉक सिलेक्शन यूज करेंगे बट वी विल यूज फंडामेंटल्स, राइट. स्टेप 2 में हम लोग वीकली या मंथली टेक्निकल रिसर्च करेंगे. सो हम एक वीकली या मंथली टेक्निकल चार्ट को देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू सेल, राइट. एंटर कब होना है, एग्जिट कब होना है, स्टेप 2 में देखेंगे. कौन सा स्टॉक करना है वो स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे, right. The third and the most important part is how you will manage the risk and your money. एक सैंपल पोर्टफोलियो और एक 2-3 केस में आपको दिखाऊंगा कि अगर ये होता है तो आपको ये करना चाहिए, ये होता है तो ये होना चाहिए. I'll cover everything.
बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड नॉर्मल 50-50 केस सिनेरियो, तो वो भी हम देखेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू टेक द एक्शन। ये स्टेप 4 मेरा नहीं है, स्टेप 4 आप लोगों का है। इफ यू गो होम एंड इफ यू फील दैट दिस इज गुड, आपको कॉन्फिडेंस पहले होने चाहिए। जिस मंदिर पे आप जा रहे हो उस भगवान पे आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है एंड इफ यू वांट टू अप्लाई इट, राइट, तो यू शुड स्टार्ट राइट अवे, राइट। अगर ये समझ में आ रहा है एंड इफ यू फील लाइक, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉक सिलेक्शन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, राइट। सो इसके अंदर हम लोग कुछ फिल्टर्स यूज करेंगे, राइट। फिल्टर नंबर 1, और वो फिल्टर क्यों यूज करते हैं मैं हर एक चीज का आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन आल्सो, राइट। आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन आल्सो कि कौन सा फिगर हमने लिया है, क्यों हमने वो फिगर लिया, एंड व्हाई वी आर गोइंग टू टेक दिस, राइट। सो द फर्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 7,000 करोड़, राइट। सो जिसको नहीं पता है मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है कि कंपनी की टोटल नेटवर्थ क्या है, या टोटल कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, नॉट नेटवर्थ बट वैल्यूएशन मार्केट में क्या है। अगर मैं कंपनी को अभी बेचने के लिए निकलता हूँ तो कितना मुझे मिलने वाला, राइट। सो कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए मोर देन 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ इज नॉट अ जोक, राइट। सो जो भी नई नई कंपनी होती है, पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसपे यू नो वी हैव पंप एंड डंप होता है या ऑपरेटर स्टॉक होते हैं, वो सब हमें नहीं ट्रेड करना है। वी वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। अगर वो स्टॉक में क्वालिटी है तो ही हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, वरना उसको ट्रेड हम नहीं करेंगे। सो 7,000 CR इज अवर bare मिनिमम बेंचमार्क, कि उससे ज्यादा तो मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए ही चाहिए, राइट। और रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, करेक्ट, to avoid we want only big and established company to avoid pump and dump traps, right? Okay, the next filter, ये हो गया फिल्टर नंबर 1। अभी हम दूसरा फिल्टर देखेंगे। टोटल 5 फिल्टर्स है हमारे पास, और वो पांचों के पांचों फिल्टर को आप बोलोगे कि यार देयर आर लॉट ऑफ लाइक 2,000 3,000 कंपनीज है इन NSE, राइट। तो ये सब फिल्टर्स को लाइक हम मैन्युअली सब ये चेक करेंगे तो क्या होगा। सो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल, कि आपको एक रेडीमेड वेबसाइट है जिसपे यू कैन गो एंड डायरेक्टली यूज दिस फिल्टर। मैंने फिल्टर ऑलरेडी बना के वहां पे रखा है, तो आप डायरेक्टली वो लिंक पे जाके यू कैन यूज दैट। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबल फॉर यू गाइज। तो जैसे ही आप फिल्टर यूज करोगे यू कैन डायरेक्टली गेट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, कि हाँ इतने ही स्टॉक्स है जो ये आपके पांचों फिल्टर को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। एंड द गुड थिंग इज दैट कि वो फिल्टर आपको अपडेट भी नहीं करनी। तो एक बार अगर आपके पास लिस्ट आ गया, वो लिस्ट को आप डाउनलोड करके यू कैन जस्ट लीव इट, राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। So filter number 2 is that 10-year average sales growth should be greater than 10%, right? So मुझे क्या चाहिए कि 10 ईयर का जो मेरा एवरेज सेल्स का ग्रोथ है ना, वो 10% से मुझे ज्यादा चाहिए, राइट। सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना, कि एवरी ईयर मुझे ग्रोथ भी चाहिए और वो 10% भी होना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी फॉर 10 years. सो कंपनी एटलीस्ट 10 साल पुरानी है और एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू ऑल्सो, उसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इनका एक इम्प्लाइड होता है। ओके, सो आई गॉट अ क्वेश्चन कि हाउ डिड यू गेट द बेंचमार्क ऑफ 7,000 करोड़। वन सेकेंड, सी बहुत सारा होता है इसमें रिसर्च दैट वी अकर टू दिस बेंचमार्क ऑफ 7,000 करोड़, राइट। सो द थिंग इज दैट कि एक होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिल्टर होता है। मैं इसको 10,000 करोड़ भी कर सकता हूँ इजीली, इसमें कुछ है नहीं, मुझे सिर्फ जीरोस ही ऐड करने हैं। एंड देन देयर इज अ वे कि जिसमें मेरी अपॉर्चुनिटी भी नहीं जानी चाहिए, इसको लूज भी नहीं कर सकते, इसको टाइट भी नहीं कर सकते। दिस इज अ स्वीट स्पॉट। तो 2-3 बार अगर आप रिसर्च करोगे और आपको एक फिल्टर निकल के आता है, सो देन यू कैन डिसाइड कि हाँ ये एक मिड वे है, कि जिसमें मुझे बहुत टाइट भी नहीं है मेरा फिल्टर और बहुत लूज भी नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स मी इन बोथ द वेज। अपॉर्चुनिटी भी नहीं जानी चाहिए और कोई थ्रेट भी मुझे नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन 7,000, और कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं, राइट। Sales number can be manipulated. What should we do in that scenario? That's a really good question. Sales can be manipulated, that is true. But see, the thing is that कि आप 5 filter पहले देख लो, right? It is not that easy कि वो लोग 10 साल तक manipulate करेंगे, right?
और ऐसा हो भी गया इन वर्स्ट के सिनेरियो, तो क्या होगा? आपका लॉस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में सिखाऊंगा कि हाउ कैन यू लिमिट योर लॉसेस, राइट? सो लेट इट बी। अभी हम लोग थोड़ा आगे फोकस करते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर्स आई गेस, राइट? सो स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ implies strong performance, ये एक जनरल रूल है। देयर माइट बी विंडो ड्रेसिंग भी होती है बैलेंस शीट्स के अंदर, वी ऑल नो दैट, बट यू नो 10 साल तक करना इज रियली ट्रिकी, और वो भी हम लोग एक एवरेज 10% की ग्रोथ ही देखते हैं, राइट? सो कमिंग डाउन टू फिल्टर नंबर 3, सो फिल्टर नंबर 3 हमारा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैं इक्विटी डेट जो भी है, मैं जितना मैं अपने रिसोर्सेज है, जो जितनी भी मेरी कैपिटल है एम्प्लॉय कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, उससे मुझे रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है। सो व्हाट यू सेड कि हाँ वो सही है कि सेल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट आपको प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% से ज्यादा चाहिए, वो भी 10 ईयर की मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। 10 ईयर की मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, मतलब वो बहुत बड़ा टाइम होता है। उसके अंदर मार्केट सब देख लेता है, इंडस्ट्री सब देख लेती है, स्टॉक भी सब देख लेता है, अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, राइट? सो 15% से ज्यादा मुझे ROCE चाहिए एवरेज, राइट? और वो होता है स्ट्रॉन्ग रिटर्न, जिसके अंदर हम लोग इक्विटी और डेट दोनों को कंसिडर करते हैं। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द फिल्टर नंबर 4, ठीक है? ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्रोमोटर का होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 33%। 33% मैंने इसलिए रखा है बिकॉज कुछ सेबी के नॉर्म्स भी होते हैं जिसमें उन लोगों को कुछ चीजें लिक्विडेट करनी पड़ती है इफ दे आर ब्रिंगिंग इन एन IPO और दे आर लिक्विडिंग देयर स्टेक टू पब्लिक, राइट? तो वो सब मिला के उनका एटलीस्ट 1/3 स्टेक तो होना चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है? अभी क्या होता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज स्किन इन द गेम। तो मेरी स्किन इन द गेम तो होनी चाहिए इसके अंदर, राइट? एल्स इट इज यूजलेस। अगर मैं कंपनी का ओनर हूँ तो कंपनी के अंदर मेरा 1/3 स्टेक है, तो कंपनी अगर डूबेगी तो बाकी के लोगों को जितना टोटल फर्क पड़ता है, क्योंकि सब लोग तो क्या है कि छोटी छोटी 1% से भी कम या 0.% में होते हैं, 1 भी नहीं होता है पूरा, पॉइंट भी नहीं होता है समटाइम्स, राइट? तो इन्वेस्टर्स के पास तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, राइट? बट प्रोमोटर है उसके अकेले के पास 33%, लाइक 1/3 स्टेक होता है एटलीस्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि प्रोमोटर की स्किन इन द गेम होनी चाहिए इसके अंदर, राइट? नेक्स्ट इज द स्टॉक्स, द लास्ट क्राइटेरिया, एंड दैट इज 7 years एवरेज रिटर्न ऑन शेयर प्राइस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से कि उन्होंने इन्वेस्टर को कितना कमा के दिया है। 17%। नाउ इफ यू आस्क मी कि 17% कैसे आया, ओके, somebody asked me कि where did you find this 5 filters? See, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो लोग हम खुद से रिसर्च करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग रीडिंग और वो सब करने के बाद हमको पता चलता है। सो इट इज मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? ये जो होता है फिल्टर्स, और ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि इट इज टोटली कि मेरा ये खुद का सब कुछ है, बट फ्यू थिंग्स आर देयर व्हिच वी अंडरस्टैंड एंड वी लर्न फ्रॉम अदर्स आल्सो, राइट? तो रीड करते हैं, उसके लॉजिक को समझते हैं, और देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, एंड उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम लोग ट्वीक कर सकते हैं एज पर आवर लाइकिंग, इसको हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि इट इज मिक्स्ड बैग ऑफ एवरीथिंग, राइट? 17% इज माई निफ्टी रिटर्न्स। सो निफ्टी के रिटर्न्स को मैं बीट कर रहा हूँ, एंड निफ्टी के रिटर्न्स को मैं बीट कर रहा हूँ, जनरेटिंग मोर देन 17% रिटर्न, और वो भी 7 साल की एवरेज में, राइट? So Payal is asking कि most of the penny shares have of Z category also have a market cap of more than 7,000 crore and is not okay to invest in this kind of shares. That's really true. But do you really think कि वो लोग 5 फिल्टर में आएंगे हमारे पास? Right. My point is that कि वो 5 फिल्टर में उसको नहीं होगा। मैं अभी आपको एक लाइव लिस्ट दिखाता हूँ वेबसाइट पे जाके। I will show you the live list. So I guess that will solve your query but in a better way, right? तो हम लोग इसको देखेंगे, right? तो आप अगर उस कंपनी को देखोगे, उसकी हिस्ट्री को पढ़ोगे, so there is like a 99% चांस, राइट? प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी कि वो कंपनी अच्छी निकलेगी। और इन इनवर्स्ट के सिनेरियो इफ समथिंग गोज रॉन्ग और उसमें आपका लॉस हो रहा है, तो वो लॉस लिमिट हमको करना है, राइट? दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो? अभी आप रिलायंस पे भी कर रहे हो कुछ, कल जाके इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस और उसके रिफाइनरी में पाकिस्तान ने बॉम्ब डाल दिया, तो व्हाट यू विल डू? रिलायंस तो अच्छी कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है,
right? One of the biggest in the world, I would say, right? तो इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा हो गया तो like there is no way that you can totally safeguard yourself. अगर आप मार्केट में हो तो मार्केट के रिस्क तो आपको you have to understand it and you have to mitigate it, right? उसको आपको hedge करना, मतलब उसको आपको manage करना पड़ेगा, right? So it is beating the Nifty index return on share price, right? Now to get these results हम लोग use करेंगे website screener.in. Screener.in करके एक website है, उसको हम लोग use करेंगे, and you have to copy this code. What I'm gonna do is I'm gonna send this PDF file or PPT file in the WhatsApp group once we are done with this. So Rahul is saying TTM, like, you are really fast, Rahul. आपने scan भी कर लिया and you say that okay, it is fitting all the 5 features and still it is on downtrend. So here we are not trying to predict the trend, boss. हो सकता है वो downtrend में होता है, right? Stocks downtrend में रह सकते हैं और वो 1-2 महीने में नहीं, वो कुछ सालों तक भी downtrend में रहते हैं या flat trend में रहते हैं, कभी भी breakout भी नहीं होता है. But then there is a breakthrough, right? अब देखो Royal Enfield जो है, right? वो stock है Eicher Motors. If you see उसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ना तो it was a gone case, right? उसका जो प्रोमोटर है वो बाइक का एंथुजियास्ट था, बाइकर था वो, राइट? तो उसने उस कंपनी को खड़ा किया वहां से और रॉयल एनफील्ड ब्रांड ने आइशर मोटर को खड़ा किया है. इफ यू रीड द हिस्ट्री तो ऐसा हो सकता है यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? सो दैट्स रियली गुड कि आप लोग इसको रिसर्च कर रहे हो अभी बिफोर वी आर कंप्लीटिंग दिस पीपीटी, राइट? सो ये कोड है, ये कोड आप कॉपी करके वहां पे क्वेरी सेक्शन में पेस्ट करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट, राइट? सो लेट मी जस्ट गो टू दिस. दिस इज screener.in. ये वेबसाइट है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है टू सेव द टाइम. एंड यहाँ पे मैंने एक टेक्नोफंडा करके एक स्क्रीनर बनाया है. इट इज देयर बाय ProfitFolio's नेम. एंड इफ यू गो हियर, that's a really good opinion, right? But हमको इसको थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना, इसलिए निशिपाल राणा इज सेइंग दैट दिस इज जस्ट एन ओपिनियन. बट वो लोग ऐसा भी एक फिल्टर डाल सकते हो कि जिसमें प्रोमोटर ने उसका शेयर्स प्लेज किया है कि नहीं किया. दैट्स रियली गुड. आप इसमें बहुत सारे फिल्टर्स डाल सकते हो, लेकिन इतने सारे अगर आप डालोगे ना तो व्हाट वुड हैपन इज आपका जो लिस्ट है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा. और हम लोग वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं. हम लोग आगे जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे वर्क करना है मतलब आपको साल में 10 सिग्नल मिलेंगे बाई के, राइट? वो भी मर के आपको मिलेंगे सिग्नल, आपको ढूंढना पड़ेगा बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, राइट? इट इज नॉट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. तो आप इतना टाइट फिल्टर रखोगे तो यू विल लूज आउट ऑन दी अपॉर्चुनिटीज एज वेल. बट ये फिल्टर्स अच्छे, आप ट्राई कर सकते हो इसके, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस. आप इसके ऊपर भी बहुत सारे और फिल्टर्स भी है कि जो कर सकते हो, राइट? नेट डेट फ्री कंपनी बहुत अच्छा फिल्टर है. पर्सनली मैं भी देखता हूँ इस फिल्टर को, लेकिन इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, राइट? कंपनी के पास जीरो डेट है, इट मीन्स कंपनी इज रियली गुड, राइट? जो भी कमा रहा है वो पूरा इन्वेस्टर को मिल रहा है, राइट? सो नेट डेट फ्री कंपनी अगर आपके पास है, दैट्स रियली गुड. कैश रिच कंपनीज, लवली. इन्वेस्टर्स का सबसे पहला पिक होता है कैश रिच कंपनीज लाइक TCS है, LIC है. कितना कैश है उनके पास सरप्लस, दे कैन जस्ट गिव लोन टू द कंट्रीज, राइट? उतना उनको पास कोई छोटी मोटी कंट्री को वो पूरा लोन दे सकती है, उतना कैश रिच वो लोग है, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्ले अराउंड विद दिस एंड इट्स रियली गुड दैट यू आर यूजिंग योर माइंड एंड डूइंग दिस, राइट? सो जैसे ही आप इस स्क्रीनर को रन करोगे एंड यू कैन सी दैट दिस आर द एग्जैक्ट पैरामीटर्स व्हिच आर पेस्टेड इन माय PPT and I have used this, right? So once you do this you will get around 54 stocks out of the Nifty basket, right? और if मैं आप देखोगे you will get TCS, Page Industries, Britannia, Crisil, L&T Infotech. आप देखो Mindtree, Dr. Lal Pathlabs, सब की सब अच्छी कंपनीज ही आ रही है, राइट? 53 में से आप पहले तो 53 में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इन्वेस्ट कर पाओगे 10 या 15 कंपनीज में एट मैक्स, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे. उतनी कैपिटल भी नहीं होती है हमारे पास और उतना डाइवर्सिफिकेशन भी हम नहीं पॉसिबल, और सब में आपको उतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, राइट? इसमें आप अपना खुद का और एक फिल्टर डाल के इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो. यू कैन से दैट ओके 54 है लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन लाइक 25 ओनली. आप मैनुअल रिसर्च किया, 54 को रिसर्च करने में 2-3 दिन लगता है, राइट? आप अपने ओवरऑल और कुछ पैरामीटर्स देख के यू विल कम डाउन टू 25 आल्सो. तो इट इज अप टू यू. Anyways, so this is how the screener.in is working, and you can export this list directly in your system and you can use this out, right?
ओके, सो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड अच्छा, सो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म होता है. डू यू गाइस हैव एनी डाउट्स? इट्स रियली गुड कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. आई फील रियली गुड, यू नो, इंटरेक्टिव थोड़ा लग रहा है. अगर कोई डाउट है तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्लियर करेंगे, देन विल मूव टू द स्टेप नंबर 2. No, Rahul, I think we cannot use any of the filters in intraday, boss, because ये filter को play करने में भी कुछ quarters लग जाते हैं. It's not about few days or weeks or months. Sometimes it takes quarters to change this filters, right? आप सोचो कि पूरी 10 साल की एवरेज आ रही है. मेरी 10 साल की एवरेज समझ लो कि मैंने 15% का फिल्टर डाला है, लेकिन वो स्टॉक 25% मुझे रिटर्न दे रहा है 10 साल का एवरेज, राइट? तो एक साल अगर वो लेट्स अज्यूम कि वो 50% फॉल हो गया, राइट, अचानक से, सो उसकी एवरेज को तोड़ने में भी उसको एक और साल लगेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. इज सिंपल मैथमेटिक्स. सो इसको आप इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो. इसलिए मैंने बोला कि ट्रेडिंग के लिए यू कैन नॉट यूज दिस, राइट? Okay, so we are done with this part. Now we are going to see कि how we can use this information, और हम लोग वीकली और मंथली पे चार्ट के ऊपर इसका रिसर्च कर पाएंगे, राइट? अभी चार्ट रिसर्च है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? सो आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन लाइक 15 20 30 मिनट्स, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूट करके दे सकूं जिससे आप अपना रिसर्च कैरी कर सकते हो, राइट? Abhi, before we go to the charts, I'm going to give you that how you can read the candlesticks. Candlestick is type of a charting technique. बहुत ही famous and most used technique है अभी, right? And उसको आप कैसे read कर सकते हो. So this is a bullish candle. Green color की candle होती है. Normally कोई भी platform पे अगर आप देखोगे, it is a green color candle. तो इस part को इस तरह की वो candle दिखती है, right? तो इस particular part को हम बोलते हैं body of the candle. ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, सो इट मींस यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस होगी, राइट? इसका हाई जो होगा वो दिस होगा, दिस पॉइंट विल बी माय हाई एंड दिस विल बी माय लो पॉइंट, राइट? एंड दिस विल बी माय क्लोजिंग प्राइस. नाउ क्लोजिंग प्राइस ग्रीन इसलिए है बिकॉज ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ, समझो कि यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ तक गया, फिर वो नीचे आया, यहाँ तक आया और यहाँ पे क्लोज हुआ. इट मींस इट हैज क्लोज्ड अबव माय ओपनिंग प्राइस. So that is the reason इसको हम bullish candlestick pattern बोलते हैं, right? Bullish बोलते हैं candlestick. और ये जो ऊपर का भाग है जिसके ऊपर वो sustain नहीं कर पाया, यहाँ पे थोड़ा selling pressure है, यहाँ पे थोड़ा buying pressure हुआ, whatever it is, जो भी हुआ यहाँ पे वो sustain नहीं कर पाया, तो that part is known as shadow, upper shadow और upper wick जो हम बोल सकते हैं. और जो नीचे का होता है उसको हम बोलते हैं lower shadow और lower wick. It is very simple. ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट यू नो बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन फ्यूचर, तो ये आपको अभी पता होना चाहिए. एंड वाइजा वर्सा विथ बेरिश कैंडल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंटरचेंज होती है, दैट इज ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. प्रीवियसली ओपनिंग प्राइस मेरी नीचे थी ग्रीन कैंडल में, बेरिश और जो रेड कैंडल जो होती है उसके अंदर मेरी ओपनिंग प्राइस है वो ऊपर रहती है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो मेरी नीचे रहती है, राइट? So that is the only difference, और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट? टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें कि अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट के अंदर बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं. Yeah, so somebody wants to understand the candlesticks. 1 second, I'll do that. मैं आपको ना लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, so don't worry about it, but just to understand, ये होती है कैंडल होती है, राइट? समझ लो कि मैं अभी आपको ऐसा दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक मंथली कैंडल को देख रहा हूँ. सो ये महीने में कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपए पे खुला, महीने के स्टार्टिंग में 100 रुपीज से वो स्टार्ट हुआ उसका ट्रेडिंग, वो वहां से थोड़ा सा गिर गया, 98 तक गया. सो ये हो गया मेरा लो. सो 100 पे खुला, 98 पे लो बनाया, वहां से उसने हाई बनाया 110 का. सो 110 इज माई हाईएस्ट पॉइंट, तो 110 हो गया मेरा हाई, और वो क्लोज हुआ समझ लो कि 105 पे. सो 100 पे खुला और 105 पे क्लोज हुआ. सो मेरी बॉडी है वो 100 से लेके 105 की बनेगी. सो दिस इज अ बुलिश कैंडलस्टिक, राइट? मैं आपको लाइव चार्ट पे अभी दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 minutes एंड आई थिंक इट विल क्लियर योर डाउट, राइट? Right. So time frames
टाइम फ्रेम हम लोग क्या होता है कि देर आर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स दैट वी गोना यूज, राइट, वी कैन यूज। टाइम ड्यूरेशन होता है चार्ट के अंदर कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्या है, उसके ऊपर से आप टाइम इंटरवल डिसाइड कर सकते हो, राइट। बाकी की जो चीजें वो छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस होती है। अगर आप इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म, तो आपका गोल क्या रहता है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, राइट। योर गोल इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सो उसके अंदर आपको क्या है कि आप फिर छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर देते हो। सो वहां पे आप नहीं देखते हो कि हाँ ये दिन मार्केट गिरा, वो दिन मार्केट बढ़ गया। यू इग्नोर दैट पार्ट बिकॉज आपका लॉन्ग टर्म विजन। तो छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर करते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये सब चीजें आपके लिए मैटर करती है, राइट। सो पॉपुलर टाइम फ्रेम्स आर मंथली, राइट। उससे भी ऊपर होता है कई प्लेटफॉर्म्स या सॉफ्टवेयर के अंदर, बट मंथली इज लाइक बेस। सो मंथली, वीकली, उससे कम अगर आप देखो तो डेली, कि पूरे दिन में स्टॉक या पर्टिकुलर स्टॉक ने परफॉर्म कैसे किया, पूरे वीक में कैसा परफॉर्म किया, पूरे मंथ में कैसा परफॉर्म किया, राइट। एंड देन देयर इज इंट्राडे। अभी इंट्राडे पे तो हमको जाना नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टच दोस टॉपिक्स, बट हम लोग यूज करेंगे मंथली और वीकली। हम डेली भी नहीं यूज करने वाले, राइट। सो वी गोना इग्नोर दैट पार्ट। सो अगर ओपन में बोल रहा हूँ कि ओपन प्राइस ये है, इट मीन्स ओपन प्राइस ऑफ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ और वीक। अगर मैं वीकली पे हूँ तो ओपन प्राइस ऑफ फर्स्ट डे ऑफ वीक तो मंडे होता है मेरा, और ओपन प्राइस ऑफ फर्स्ट मंथ होता है जो भी मंथ का पहला ट्रेडिंग डे होता है, दैट इज माय फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ, राइट। एंड the next is high. I guess someone is right. So high is highest price during the entire month or the entire week. पूरे हफ्ते या पूरे महीने के अंदर highest price जो मेरा होता है, that is my high. The low is lowest price during the entire month or week. पूरे दिन, पूरे month में या पूरे week में सबसे low जहाँ पे जाता है, that is my lowest price. और close होता है जो मेरा last day पे, जिस दिन पे वो मंथ या वीक एंड होता है, वो दिन का क्लोजिंग प्राइस मेरा क्या होता है। सो दैट्स माय ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको हमको थोड़ा सा यूज करना है, कुछ ज्यादा नहीं यूज करना है, राइट। उसके साथ साथ हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे ना। ये थोड़ा सा, इफ यू आर न्यू टू द मार्केट, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा घर जाके भी आप रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। RSI करके एक इंडिकेटर है, इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस में मैं नहीं जाऊंगा अभी, वी डोंट हैव टाइम दैट मच, बट अगर मुझे इसको समझाना है, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। सो RSI क्या करता है बेसिकली, इट देयर इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, राइट। मार्केट में क्या होता है और कुछ नहीं, बायर्स और सेलर के बीच में एक वॉर चलती रहती है कि हु इज डोमिनेटिंग हुम, बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है, वो एक वॉर चलती है। और उसको अब ब्रेक डाउन इजी लैंग्वेज में अगर करना है तो RSI इज वन ऑफ द इंडिकेटर which will tell you कि whose strength is more compared to the opponent, right। अगर मैं बायर के साइड से सोच रहा हूँ तो बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा है या सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा, वो सिर्फ वो दिखाता है, राइट। अभी के लिए यू कैन थिंक दिस मच, RSI के ऊपर बहुत लोगों ने PhD किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, एंड देयर आर प्रोप्राइटरी रिसर्च ऑल्सो, राइट। तो उसके ऊपर तो वी कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड डेज ऑल्सो, राइट। सो ये हम लोग 2 पीरियड का यूज करेंगे। तो लास्ट 2 मंथ या लास्ट 2 वीक का हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे, और वो कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सॉफ्टवेयर करके देगा, आई शो यू हाउ, राइट। और उसको हमने कॉन्सेप्ट दिया है मीन रिवर्जन का, राइट। सो आई एम गोइंग टू बाय स्टॉक्स एट डिस्काउंट, आई एम गोइंग टू बाय द फियर, राइट। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, थोड़ा सा पैनिक जैसा सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, पैनिक होते हैं और वी सेल दिस आउट, राइट। फियर होता है वो सबसे फास्ट होता है मार्केट में। देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज कि व्हेन प्राइस गोज अप इट गोज बाय स्टेयरकेस एंड इट कम्स डाउन विद एस्केलेटर, राइट। तो वो गिरता है तो पूरा गिरता है, लेकिन चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है, राइट। सो वी गोइंग टू बाय द सिलेक्टेड स्टॉक एट अ वेरी चीपर और डिस्काउंटेड रेट। अभी मुझे पता है कि एक आईफोन है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली आई वुड से कि 50,000 होनी चाहिए। 55 पे मिल रहा है तो मैं वेट करूंगा कि उस पर कुछ डिस्काउंट आए तो मिले, करेक्ट। सो हमारी फॉर्मूला ये रहेगी कि RSI 2 पीरियड का जो RSI की वैल्यू है वो क्रॉस कर रही है 10 के। सो इट इज एन ऑसिलेटर जो 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है, तो वो क्रॉस करना चाहिए 10 के नीचे,
at that point of time I'm going to buy that stock which I have selected, right? ये हम चार्ट पे जाके देखेंगे अभी, so that you will understand this in a better way. Can you see my software? ये वाला आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो अभी? Yes. Right? हाँ, so अभी मैं ट्रेडिंग व्यू करके एक सॉफ्टवेयर में उसमें हूँ. ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अगेन, and you can take this, you can use this software at your convenience, and आप इस पे एक अकाउंट भी बना सकते हो, right? और इसके अंदर we can take up a stock की जो हमने अभी स्कैनर पे देखा है. तो मैं अभी एक ऐसा स्टॉक लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग की जो सबको पता है, सबको पसंद भी है और पता भी है, right? So that is TCS. So इसमें 5th नंबर पे मेरे स्कैनर पे आ रहा है. मैं स्टॉक को अपने चार्ट पे लोड कर रहा हूँ, राइट? सो दिस इज माय TCS का चार्ट है, और इफ यू सी हियर मैंने टाइम फ्रेम रखा है महीने का, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मैं महीने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसको, राइट? सो मैं अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि मैं कहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट zoom this up, right, so that you can see this, right? और यहाँ पे मैंने एक RSI इंस्टॉल किया हुआ है. how you can use trading view. अभी again I don't have that much time, but if you have any questions you can contact me in person also, so I'll teach you, I'll just explain you quickly. but अगर आप settings में देखो तो my input is 2 period, right? मैंने और कुछ अभी इसमें change नहीं किया. और ये जो line है ना यहाँ पे white color की, that is my 10 value, right? so जब भी वो ये blue line जो मेरी है, right, the turquoise line, it is crossing the white line, so that particular thing is my buy signal. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैंने आपको रूल पहले बताया है, अभी मैं चार्ट पे उसको प्रूव करने वाला हूँ, मेरे ही रूल को, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, इट इज एज सिंपल. ये सब डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप जाओ, आप एक्सेल की फाइल बनाओ, यू डू द रिसर्च, राइट? इफ यू फील इट इज गुड देन ओनली यू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न. ठीक है? नाउ व्हाट इज दिस मंथ? इट इज मार्च 2020, राइट? जब आई गेस कोविड तभी हुआ था स्टार्ट, राइट? फरवरी मार्च पे लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था एंड देयर वाज अ बिग क्रैश. TCS ऐसी कंपनी है जो सबसे कम गिरी है कोविड में, बिकॉज IT सेक्टर बूमिंग था, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड केस सिनेरियो. मैं वर्स्ट केस भी दिखाऊंगा, बट दिस इज द पॉइंट. आई होप यू कैन सी माई एरो. एक ग्रीन कलर का मैंने एरो बनाया है. This is the point where my RSI reading is falling below 10. वो 7 point something हो रहा है. यहाँ पे RSI reading दिख रहा है, मेरा कर्सर जहाँ पे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा. So if you see my RSI reading is 7 point something. So it is below 10. So मैं इस particular price पे closing पे मैं इसको buy कर सकता हूँ, right? और यहाँ से मुझे कितना move मिला है, यहाँ से लेके till date जो भी price है, 97%. 97% move मुझे मिला है, राइट? अगर आप में लॉन्ग टर्म है ये, बिकॉज ये 2020 का इन्वेस्टमेंट है और वी आर इन 2022, सो ऑलमोस्ट 2 साल, यू नो, आई वुड से, या इट्स मोर देन 2 years आई वुड से, राइट? सो 2 साल तक मैं खड़ा हूँ और उसमें मुझे 100% रिटर्न मिला है, राइट? और उस 100% रिटर्न को और वो भी यूक्रेन और इसकी वॉर के बाद का है, ये मैं सब डिस्काउंट करके आपको बता रहा हूँ. 100% अगर मैं 2 साल का गिनता हूँ तो दैट कम्स डाउन टू 50% अ ईयर, राइट? सो एनीवे यू आर बीटिंग योर म्यूचुअल फंड्स. ठीक है? ये हालांकि इट इज अ गुड केस सिनेरियो. मैं आपको थोड़े बैड केस भी दिखाऊंगा. इवन हियर आल्सो इफ यू सी, मुझे मेरा बाय सिग्नल एक यहाँ पे मिला TCS में, एक मुझे एक और यहाँ पे भी मिल रहा है, राइट? हियर आल्सो द RSI रीडिंग इज गोइंग डाउन, राइट? ये 2016 में मुझे मिला था नवंबर में. अगर मैं यहाँ से यू नो दिस सिग्नल टू मैं, या मे बी एग्जिट सिग्नल तक भी इसको देखूं ना, दूसरे सिग्नल तक, तो वो करीब 60% रिटर्न दे रहा है. एंड इट इज देयर फॉर अराउंड मे बी 4 और 5 years तक है, राइट? इसका व्हाट विल आवर RSI, या सी सेलिंग द स्टॉक, वो अभी आ रहा है, दैट इज कमिंग डाउन. किसी ने डाउट पूछा है कि हाउ डू वी एग्जिट द पोजीशन. ये आप एंट्री समझ लो. मैं आपको, आई विल नॉट लीव यू गाइस, राइट? पूरा सिस्टम समझाऊंगा, रिस्क भी समझाऊंगा, मनी मैनेजमेंट भी समझाऊंगा, एक पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं सिखाऊंगा. देन ओनली वी विल, यू नो, गो फॉर अ गुड नाइट स्लीप, राइट? सो ये अभी एंट्री पॉइंट है. सो दिस इज हाफ द एंट्रीज आर देयर, करेक्ट? ये एक सिंपल स्टडी है, तो इसमें उतना आपको टाइम नहीं लगेगा. So I didn't get your question, Disha. Can you, you know, explain it in a better way in chat? Sorry if someone is bigger.
सो अगर if I understand you correctly, अगर वो RSI रीडिंग आपकी नहीं आ रही है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इसके अंदर, दैट इज फॉर श्योर, राइट। अभी वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको ट्रेड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे आपको बताना होगा, राइट, तो वो होगा निफ्टी बीज। just a second, yeah, निफ्टी बीज। निफ्टी बीज इज नथिंग बट अ ETF जो निफ्टी को ट्रैक करता है। सो वो अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ इसको, या पोजीशन क्रिएट करता हूँ, थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ। तो मैं इसको मंथली पे नहीं देखता हूँ, मैं इसको वीकली पे देखता हूँ, राइट। तो जब भी जो भी वीक पे मुझे ये मिलता है इट इज फॉलिंग बिलो 10 पीरियड, तो मैं उसमें जरूर थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। मैं रैंडमली भी करता हूँ because I am into this game since long, so I don't necessarily follow this rule book, but just to give you a perspective, if you are new, so you can just follow these rules, right? ETF पे बहुत अच्छा चलता है, आप निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, वो ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए बनी है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी बीज में कर सकते हो, वो बेसिकली निफ्टी को ट्रैक करता है, राइट। गोल्ड बीज है, वो गोल्ड को ट्रैक करता है। आप गोल्ड के लिए क्या करते हो, फिजिकल गोल्ड परचेस करते हो। अगर फिजिकल गोल्ड परचेस करते हो तो आपको उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, और दूसरे भी कुछ ऑक्ट्रॉय एंड वो सब जो भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता है, मेकिंग चार्जेस या वो सब ऐड होता है, राइट। बट इफ यू बाय द ETF, आपको गोल्ड जितना ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये सब चीजें निकल जाएगी आपसे, राइट। तो यू विल सेव ऑन दोस मेकिंग चार्जेस, और उसको हैंडलिंग कॉस्ट भी बच जाती है। नाउ यू हैव टू हैव द लॉकर, राइट। अभी आपने समझो कि 20 ग्राम गोल्ड को होल्ड करना है, तो उसके लिए आपको लॉकर चाहिए, राइट, करेक्ट। लॉकर इज कॉस्टिंग अराउंड 1500 अ मंथ, तो ये कॉस्ट भी आपकी एक कॉस्ट होती है, राइट। आई नो दैट वी वुड बी यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पस, बट ये एक हैंडलिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। So Dishal, I'll come back to your question once we finish this risk management part, right? Because आपका question, I guess it will be solved then, right? So I guess यहाँ तक सबका सब कुछ clear है। So ETF और equities पे ये चलेगा, उसके अलावा don't try to use it on any other place. This really works good on US markets also, हमने उसमें भी try किया हुआ है ये सब चीजें, right? ये बेसिकली एक रिसर्च था लैरी कॉनर्स करके, जिसने ये कॉनर्स RSI भी उसको बोलते हैं लोग, उसने रिसर्च किया है, लेकिन हमने उसको ट्वीक किया है इस पर इंडियन मार्केट्स, वो हमारा एड ऑन, राइट। इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, राइट, कि दिस इज रियली वर्किंग गुड। और मैंने आपको जैसे बताया कि यू आर बाइंग एट अ वेरी परफेक्ट पॉइंट, कि जहाँ पे टर्न अराउंड आपको होता है, राइट। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 100 ट्रेड्स लिए तो 100 आपके सक्सेसफुल होंगे, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 60% to 70% वो टर्न अराउंड होगा, और वो भी पॉजिटिव होगा। सो दैट्स रियली गुड फॉर यू गाइस, राइट। ओके, so yeah, we'll come back to our session. Right now, see the most important thing, आप पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करोगे। यहाँ मैंने सिखा दिया आपको एंट्री कैसे लेना है, स्टॉक सिलेक्शन वी आर डन विद दैट, एंट्री कैसे लेना है वो हमने समझ लिया, चार्ट भी हमने देख लिया एक सैंपल, राइट। अभी हाउ विल यू मैनेज योर पोर्टफोलियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, तो पोर्टफोलियो आप कैसे मैनेज करोगे वो हम देखेंगे। थोड़े रूल्स है विच यू हैव टू फॉलो एनी हाउ, राइट। आपको ये रूल ब्रेक नहीं करना है। इफ यू आर बिगिनर, आप नए हो मार्केट के अंदर, फर्स्ट टाइमर हो, तो बिल्कुल भी आपको ये ब्रेक नहीं करना है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप थोड़ा इधर उधर से निकल रहे हो, देन दैट्स ओके, इट्स योर कॉल, बट एट एनी कॉस्ट इफ यू आर अ बिगिनर देन डोंट ब्रेक दिस रूल, राइट। मैक्सिमम पोजीशन 10 लेनी है आपको एट अ टाइम, ठीक है। आप 10 से ज्यादा पोजीशन नहीं ले सकते हो, बिकॉज क्या है कि आप उतना मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको हर एक स्टॉक के बारे में समटाइम्स अगर कुछ अगेंस्ट में जा रहा है तो यू विल फील पैनिक, और उसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करोगे। अगर आपने बहुत सारे स्टॉक ले लिए और नेक्स्ट डे वॉर हो गई या कुछ हो गया, एंड इफ इट विल फॉल, हमारा कुछ नहीं जाएगा, राइट, बिकॉज वी हैव कीप्ट द रिस्क इन सच अ वे कि वी विल बी सेव्ड फ्रॉम सच काइंड ऑफ वॉलेटाइल मूवमेंट्स। बट आप पैनिक जरूर करोगे, और जब आपकी स्किन इन द गेम होगी। मैं बाहर बैठ के तो मैं बहुत बोल रहा हूँ ना कि धोनी को ये करना चाहिए, धोनी को वो करना चाहिए, बट वो फील्ड पे होता है तो वो प्रेशर उसको ही फील होता है, राइट। इट इज इजियर सेड देन डन। तो जब तक आपकी स्किन इन द गेम नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। सो मैक्सिमम पोजीशन इज 10, बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल मोर देन 10 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, राइट। स्टॉप लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट विल बी बिटवीन 15% to 20%। ये आप डिसाइड करोगे।
द रीजन इज दैट बिकॉज अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो, वीकली पे वर्क कर रहे हो, तो 15% आप हार्ड स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, 20% भी लेके चल सकते हो. Buying position and buying stock is the same thing. Yeah, it is same thing. Right. So आप 15 to 20% स्टॉप लॉस लोगे, लेकिन हार्ड स्टॉप लॉस नहीं लोगे. जैसे ट्रेडिंग में कैसा होता है कि 100 रुपीज पे बाय किया है तो मेरा 20% स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज पे. सो 80 रुपीज जैसे टच होता है, I'll be out of the trade. वैसे हम लोग नहीं करेंगे इसमें, हम लोग इसको क्लोजिंग बेसिस पे लेके जाएंगे. क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे, अगर ऐसा हो सकता है कि एक दिन कुछ न्यूज आए एंड इट गोज टू 80 और ये लेट्स से 75 तक गया, लेकिन वो नेक्स्ट डे 90 पे जाके फिर से वो क्लोज करके, राइट. तो इट मीन्स कि मेरा जब मंथ या वीकली जो भी मैं चार्ट का रिसर्च कर रहा हूँ, वो जब खत्म हो रहा है तब तक वो मेरी पोजीशन मेरे कंट्रोल में आ चुकी है. सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई stop loss, and I'm going to take it on a closing basis. So that's why मैंने वो कैंडलस्टिक आपको समझाया कि क्लोजिंग बेसिस पे मुझे ये सब चीजें देखनी है, राइट. ड्यूरिंग द मंथ जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसको होने दो. समटाइम्स ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड आई विल वार्न यू, सब कुछ अच्छा नहीं होगा. ऐसा भी हो सकता है कि वो 20% का स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग पे वो आ गया है 30% नीचे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का लॉस हो गया, तो आपको वो लॉस लेके निकल जाना है, राइट. दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. वो होता है तो वो भी करना पड़ेगा आपको. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बट द सिस्टम इज मेड इन सच अ वे कि आपको ऐसा लॉस नहीं होगा, राइट. लाइक 95 to 97 98% कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा लॉस आ गया, क्योंकि आपकी पोजीशन ओपन है, राइट. टारगेट प्रॉफिट क्या रहेगा? पहले तो टारगेट प्रॉफिट कुछ नहीं रहेगा, राइट. इन्वेस्टर हो, आपका प्रॉफिट नहीं करना है, आप कुछ म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो यू कीप इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. 3 साल 4 साल 5 साल तक होल्ड करने के लिए सोचते हो आप, उसको मल्टीप्लाई होने देते हो उस चीज को, राइट. सो आपका टारगेट प्रॉफिट कुछ नहीं रहेगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू, तो आप 50 to 70% प्रॉफिट मिलता है, जब भी मिलता है. 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 2 महीने में भी मिल सकता है आपको, राइट. वी डोंट नो, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कुछ भी, राइट. सो जब भी मिले यू कैन क्विट योर पोजीशन, और आप दूसरी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो कि जब दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप उसको रीयूज कर सकते हो, राइट. एंड इट इज ओपन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. सो एज आई टोल्ड यू, टारगेट को आप खुला छोड़ दो, राइट. उसको ऊपर जाना है उसको जाने दो, डोंट लिमिट इट टू 70%, क्योंकि आज वो 70% तक गया, इट मीन्स कल वो शायद 100% पे भी जा सकता है. आप ऑलरेडी एक विनिंग पोजीशन पे हो, सो यू शुड नॉट डू दैट. एटलीस्ट, और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टॉप लॉस है ना, उसको आप कॉस्ट पे ला सकते हो. अगर मैंने 100 पे कुछ बाय किया है और वो 150 पे चला गया, तो एग्जिट मत करो. आपका स्टॉप लॉस 80 पे जो था उसको आप 100 पे रख दो, तो अब जो भी होगा मैं अपना कैपिटल लूज नहीं करूंगा, ठीक है. सो वो आपके ऊपर है हाउ यू विल डू इट, बट ये एक रूल बुक है जिसको आप एक एज अ गाइड यूज कर सकते हो, राइट. एंड इन्वेस्ट सरप्लस अमाउंट इन डेट फंड्स और लिक्विड फंड्स. नाउ ये बहुत सही चीज है विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि उसको कैसे इसको टैकल करना है. अभी समझ लो कि मार्केट में चल रही है मंदी, राइट, एंड 2008 जैसे क्राइसिस आ गए. सो व्हाट यू गोना डू, राइट. आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा अच्छे से, राइट. या आपको वो सिग्नल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उस पर दूसरी पोजीशन क्रिएट करने में यू विल बी हेजिटेट. तो वो अमाउंट को भी मार्केट में मत डालो, पुट इट इन अ सेफ डेट फंड. जब मार्केट थोड़ा रिकवर करेगी आपको अपने आप से सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. और वो होगा एक डिकेड के अंदर 1 या 2 बार ऐसा होता है, राइट. अगर आप 20-30 इयर्स की निफ्टी की हिस्ट्री देखो तो पूरे डिकेड में 1 या 2 बार ऐसी चीज होती है वेर इन यू विल फाइंड सच बिग डाउनफॉल्स, राइट. तो तब अपना फंड है वो निकाल कर डेट फंड में रखो टेम्पररी, तो इट विल एटलीस्ट अर्न समथिंग. फिर जब आपको व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट. ना एक केस स्टडी से पूरा पोर्टफोलियो को समझते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं, पूरा रिस्क क्या होगा वो सब हम समझते हैं, राइट. थोड़े से फॉन्ट शायद स्मॉल आएंगे इसमें पर्टिकुलर स्लाइड में, सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं वैसे सब कुछ हिंदी इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, बट देन जस्ट लेट मी नो, आई विल रिपीट इट अगेन, राइट. अभी ध्यान से समझना ये चीज. वी हैव एन अज्यूम्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज. अभी मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए है और इस सिस्टम में आपको 10 लाख रुपए लगाने, राइट.
You can try with 1 lakh also. आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो. I am just assuming on my end. तो 10 लाख रुपीस अभी है हमारे पास और हमको इसको इस सिस्टम में लगाना है. तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर मुझे कोई एक स्टॉक में सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन मेरी 10 है, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मैं करूंगा. आई होप यू कैन सी दिस. मेरा लेजर पॉइंटर आप देख सकते हो. 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, सो दैट कम्स डाउन टू 1 लाख रुपीस. सो कोई भी स्टॉक है, कितना भी अच्छा हो, मैं 1 लाख से ऊपर की पोजीशन उसमें क्रिएट कभी नहीं करूंगा. ठीक है. आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल. आप सब समझ रहे हो इसको, करेक्ट? मैं एक पोजीशन 1 लाख से ज्यादा कभी नहीं करूंगा अगर मेरा कैपिटल 10 लाख का है, क्योंकि मुझे 10 पोजीशन के लिए बाकी के 9 लाख रुपए बचा के रखने हैं, दूसरी 9 पोजीशन जो आ सकती है फ्यूचर. तो 1 लाख ही मैंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर. सो बाकी के 9 लाख का क्या करना है? डेट में डालना है आपको. जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक आप उसको उसके ऊपर एक छोटा सा इंटरेस्ट कमा सकते हो, राइट? अभी मेरा मैक्सिमम अज्यूम्ड लॉस कितना है पर ट्रेड का? 20% मैं हायर साइड पे अज्यूम करता हूँ. ठीक है. क्या होगा? 1 लाख रुपए मैंने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसमें मुझे 20% का लॉस हुआ. सो दैट कम्स डाउन टू 20,000 रुपीज. सो दैट इज माई मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड. ठीक है. अगर मैं उसको कैपिटल डिप्लॉयड पे कैलकुलेट करूंगा, लॉस पर ट्रेड है वो 20% है, नो डाउट अबाउट इट. वो मेरा स्टॉक है, वो 20% नीचे गया और मेरी पोजीशन वहां पे मैंने काट दी. बट लॉस परसेंटेज ऑन कैपिटल डिप्लॉयड विच इज 10 लाख रुपीज, अगर मैं उसका देखूं तो क्या होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख परसेंटेज. सो दैट विल कम डाउन टू 2%. अगर आप कोई भी ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर को पूछो कि पर पोजीशन मेरी कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना चाहिए, दे विल गिव यू 2 आंसर्स, इधर 1% और 2%. अगर वो एग्रेसिवली बड़ी पोजीशंस क्रिएट करता है तो वो 1% रिस्क लेता है पूरी कैपिटल का, या 2% लेता है. उतना आप अफोर्ड कर सकते हो. अगर आप 1 लाख से कर रहे हो तो 10,000 की पोजीशन लो. 10 लाख से कर रहे हो तो 1 लाख की पोजीशन लो. 1 करोड़ भी है तो भी ये फॉर्मूला वर्क करेगी. दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, दिस विल हेल्प यू आउट एवरी टाइम, राइट? अभी वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बताता हूँ क्या होगा. आपने 10 पोजीशन क्रिएट की, 10 और 10 में एसएल हिट हो गया तो आपका 20% कैपिटल जाएगा. ठीक है. और अभी आप म्यूचुअल फंड का हाल देखो, जो टॉप पे था, राइट, उसका भी अगर आप देखो ना तो वो भी 10-15%, 20% सबके डाउन है, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया. आई एम टॉकिंग अबाउट समवन की जिसने 2 या 3 साल में इन्वेस्ट किया है. उसने रैली भी एंजॉय की है, लेकिन अभी अचानक से फॉल भी है. तो समटाइम्स देयर इज अ हाई चांस कि आपका पोर्टफोलियो अभी डाउन चल रहा है, राइट? एज ऑफ नाउ आल्सो, राइट? देयर इज अ हाई चांस, राइट? अभी ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया. अभी हम लोग 50-50 देखते हैं, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं होगा बिकॉज वी हैव पुट इन लॉट ऑफ एक्सेस स्मॉल कैप. या can you write down how much percent it is down, right? So that you know. Acha, okay, you exited long back. You are smart guy. Anyways, so अपन assume करते हैं 50-50% केस, right? So 50% मैंने लॉस किया और 50% आई एम मेकिंग मनी, राइट? तो जब भी आई एम मेकिंग मनी, आई एम मेकिंग अराउंड 50%, राइट? पूरे समझो ना 10, ये होगा आपका कुछ करीब 1 या 2 साल का पूरा अगर आप करोगे तब जाके आपका 10 या 15 पोजीशन क्रिएट होगी हार्डली, राइट? क्योंकि उसमें सिग्नल से आपको उतने नहीं मिलेंगे. सो 5 SL जाते हैं तो इट मीन्स मेरा कैपिटल है वो 10% डाउन होता है. और 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर मैं बुक भी करता हूँ प्रॉफिट, तो एटलीस्ट आई एम गोइंग टू मेक 25%. मैं बहुत कम गिन रहा हूँ, राइट? आई ऑन अ वेरी प्रूडेंट बेसिस. तो 25% माइनस 10% करूंगा ना तो 15% मुझे प्रॉफिट होगा. आई होप यू ऑल आर विथ मी. और यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है, राइट? मैं 50% प्रॉफिट एज्यूम कर रहा हूँ और 20% लॉस को एज्यूम कर रहा हूँ मेरे लूजिंग ट्रेड पे, राइट? सो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 25% प्रॉफिट होगा लेकिन 10% का लॉस होगा. सो नेट नेट आई एम गोइंग टू मेक 15%, राइट? सो दैट इज अ 50-50 केस सिनेरियो. लेकिन ये स्ट्रेटेजी वो 70% to 80% तक सक्सेसफुल रहती है. इफ यू विल सी ऑन योर एंड, अगर आप आराम से बैठ के उसको बैक टेस्ट करो या उसके सैंपल्स निकालो, हर एक 54 स्टॉक्स के आप लास्ट 10 ट्रेड्स ले लो, ठीक है? इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू 1 or 2 hours एट मैक्स. उसकी एक्सेल फाइल बनाओ और एंड देन यू फाइंड इट आउट, राइट?
सो आइडियल केस में क्या होगा कि मैं 70% अज्यूम करूंगा ना, तो आपको 35% का प्रॉफिट होगा और 6% मतलब 3 एसएल आपके जाएंगे 2% वाले, 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे 5% वाले, सो 35% होगा। और मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। इन सम केसेस यू गोना मेक 100% इन लेस देन अ ईयर ऑल्सो। मैं उस केस की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू इग्नोर दोज थिंग। वो आउटलायर्स होते हैं, कभी कभी आपको ऐसे 2-3 केस भी मिल गए ना 10 में से, सो वो आपका जो पैसा बनाएंगे ना, दैट वुड बी इनक्रेडिबल, राइट। और ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, बट इफ यू विल कम डाउन एंड इफ यू विल स्पेंड एटलीस्ट 2-3 years इन द मार्केट, तो आपको पता चलता है। सो यू गोना मेक 29%। सो अगर मैं इसको इफ आई वांट टू सम इट अप, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि 10 ट्रेड आप ले रहे हो तो उसमें से 6 ट्रेड आपके सही होने चाहिए या होंगे, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। 6 ट्रेड्स और 7 ट्रेड्स में भी, राइट, आपके सही होंगे। और अगर 5 भी सही होते हैं, फिर भी यू गोइंग टू मेक 15%। आई कैन यू नो बहुत रेयरली कोई म्यूचुअल फंड हमको 15% से ज्यादा रिटर्न एंड ऑफ द, जब रिडम्पशन करते हैं ना, तब हम निकाल के जाते हैं, राइट। वो देता है नहीं देता है, दैट इज नॉट समथिंग कि मैं उस पर कमेंट करूंगा। लेकिन जब भी आप रिडीम करते हो म्यूचुअल फंड को, तो CAGR परसेंटेज आपका 15 को क्रॉस करेगा ना, उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, राइट। जितने लोगों के फादर के पास या जितने लोग खुद कर रहे हैं, वो आप अपने म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स निकालना, आपने जब भी रिडम्पशन किया होगा वहां से लेके इन्वेस्टमेंट तक का CAGR कैलकुलेट करना। आई कैन बेट ऑन इट कि वो 90% आई एम श्योर कि आपका फंड है वो 15% से कम रिटर्न देता होगा, राइट। या मे बी 15% 16% तक की एवरेज होता है। इवन इफ आई बी वेरी जनरस, तो 17% हार्डली वो करता है, राइट। बट इन आवर केस वी कैन से दैट वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 20 to 25% CAGR एट द एंड ऑफ लाइक 5 years और 10 years के होराइजन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप 20% को भी बीट कर रहे हो ना, then you are making a really good amount of return on your capital, right? I hope यहाँ तक आप सबको clear है, and the floor is open to questions. मेरे end से मुझे इतना ही आपको देना था। अगर आपको कुछ और जानना है, you want to see some more examples, तो you can share few things with me. I will try my best. आप अपने end से भी कुछ इसमें research करके, या you want to ask something related to this whole topic, तो we can discuss. Jai. Thank you so much, Mr. Sir. Yeah. It was lovely listening to you, and you made it very simplified explanation of every concepts, and you almost fulfilled our expectations. So it was lovely listening to you. And for the audiences here, the floor is open to questions. So you may raise your hand one by one, and you can also unmute yourselves and ask the questions to Sir itself. So Rahul is asking कि can you explain about price action? Boss, price action के ऊपर है ना, लोग they speak on hours and hours. So बहुत short time है और off topic हो जाएगा. Other people might get confused, right? Devashish, really fruitful. Thank you. Thanks a lot, Devashish. Raj is saying that will I be conducting any more sessions? मैं अभी उतना unfortunately मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. I was giving few things on YouTube also, free, like I wasn't charging anything. But अभी frankly speaking उतना नहीं मिलता है time, because I am working in US markets also and Indian markets also, और वहाँ पे भी सब चलता रहता है. So it is very difficult, but obviously we will do that. Sir, thank you so much, Sunil sir. I will definitely try to keep such session. Somebody is Raj, the asking about recordings recording. will be shared within 24 to 36 hours with you all. And also, Nisarg sir, for your information, this is Stoke Street 2.0, and the Stock Street, the part 1 of Stock Street, which happened in the last year May. The speaker of that session, Mr. Nishipal Rana, is also present at this session. So, Mr. Nishipal, if you would like to say something. Sir, आपको कैसा लगा? I mean, was it good? Was it bad? क्या आपका experience है? You can share.
I'm open to positive criticisms also. I think he's okay. See, Bhavya is asking P ratio pe information. I know it's important while buying. Yes, P ratio is important, undoubtedly. But क्या होता है कि P ratio पे we have to look at a lot of things. एक होता है अपना इंडेक्स का पी रेशियो होता है, निफ्टी का पी रेशियो होता है, फिर होता है इंडस्ट्री का पी रेशियो भी होता है कि इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है. उस इंडस्ट्री का अगर भाव बढ़ा है ना तो मैं उसमें ज्यादा पैसे भी डाल सकता हूँ. राइट, आई मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स होती है ना, वो चेंज होती रहती है. फिर जाके हम स्टॉक पी देखते हैं और फिर वी कैन कंपेयर टू उसमें उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं. सो दैट इज वन वे. अगर पी रेशियो को मुझे ब्रेक डाउन करना है इन वन लाइन तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इन्वेस्टर ₹1 कमाने के लिए कितना टाइम्स देने को रेडी है. ठीक है, इट इज लाइक कि बोली लगा रहे वो लोग, क्या ठीक है मैं 20 टाइम्स 20 का पी मल्टीपल, इट मींस आई एम रेडी टू पे 20 टाइम्स. सो वो क्या है कि वो डिमांड पे होता है और थोड़ा सा सेंटिमेंट ड्रिवन भी होता है. राइट. Okay, Nishipal ji, yeah, thank you so much for your comments. I will definitely check out your page. Yeah. Also, Disha had a question that if someone had just started the Demat account, and from which stock? Then from See, yeah, I think I read that question. Just a second. Yeah, if somebody has just started, right, then I think you should stick to Nifty 50 stocks only. आप कोई भी अच्छा stock उठा लो if you are for investment here. So I think Nifty 50 is a better choice. Right. So I had another question in chat which is asking, is averaging in bearish market good or bad? Bad. Averaging in any market is bad, right? Because you don't know कि क्या हो रहा है, right? And as a retail investor or a trader, हमको कभी कुछ information मिलती ही नहीं है. वो जो information आती है वो बहुत ज़्यादा discounted होती है. So never try to do that, right? अगर आप गलत हो, it means आप गलत हो. You take the loss, you own that loss. उसको लेके smile के साथ सो जाओ. You wait for another opportunity. Market कल खुलने वाला है ना. Let it be. Thank you, Sunny Raj. What is your view on current market? So I cannot share my view on a public platform, but let's see what happens. It is really tricky. Or the good part or bad part about traders like me, जो लोग systematic trading या investing करते हैं, we don't try to predict the market. कल ऊपर जाएगा, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कल परसों anything can happen. But our thing is that कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं ये करूंगा, अगर नीचे जाएगा तो मैं ये करूंगा. That thing is very much clear in my mind. बाकी prediction is like कि वो तो सिर्फ एक myth है basically. ये यहाँ जाएगा, जा सकता है, वो कोई 100% नहीं बता सकता है. If I knew कि वो कहाँ जाने वाला है या मेरा view क्या है तो yeah, it is diplomatic. Yeah. What if we go long with blue chip stocks? Blue chips are always good, right? अगर आप उस पे yeah, you can take good positions on blue chip. आपके पास 5 अच्छे stock है ना, then also you are good to go. आपको 15-20 नहीं चाहिए, right? My concern is that you can beat mutual funds any day, right? अगर आप थोड़ा सा खुद का time and logic, common sense use करके थोड़ा सा इसमें research करोगे, you can beat it, right? और ये long term effect क्या हो सकती है ना इसकी, you will know once you start multiplying or compounding your investment. Thank you. So, sir, I also had one question out of Are please go ahead. What is a very fundamental question? What is expense ratio and exit load in mutual funds?
So expense ratio is nothing but जो भी अगर म्यूचुअल फंड चल रहा है, बेसिकली म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ ट्रस्ट, राइट? उसका एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। सो वो ट्रस्ट को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस लगते हैं, सो वो कहीं पे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। सो दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस रेशियो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? एग्जिट लोड। एग्जिट लोड, हाँ। तो वो क्या है कि बेसिकली अगर आप उस सिस्टम पे एंटर हो रहे हो, राइट, तो अभी क्या है, एंट्री लोड ऑलमोस्ट 0 हो गया है, सो दे चार्ज एग्जिट लोड। तो अगर मैं वहां से पैसा निकाल रहा हूँ, सो उनको भी थोड़ी तकलीफ होती है ना। अभी मैं समझो कि 1000 CR का फंड मैनेज कर रहा हूँ, राइट, और अगर कल आके बोलता है कि मुझे 2 CR निकाल के दे दो, तो मेरी पोजीशन होती है मार्केट में, वो मार्केट फेवर में ना हो, तो वो निकालता हूँ, तो उसके लिए मुझे भी कहीं ना कहीं वो हिट होता है, लॉस, एंड थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है फंड वाले को। सो वो एग्जिट लोड, दैट्स व्हाई एंड हाउ दे चार्ज। दोनों चार्जेस ही होते हैं बेसिकली। एग्जिट लोड आपको तभी देना है व्हेन यू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट, और एक्सपेंस रेशियो तो आपका हर साल कटता है। ओके। ITC is good but it is steady. So see, there are like companies, ITC जैसी कंपनीज होती है जो लो बीटा होती है, राइट? सो ITC जैसी कंपनी होती है ना, वो लो बीटा होती है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज गुड, बट यू नो ग्रोथ नहीं होता है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो किसी बच्चे को 90% आ रहा है, उस पर इन्वेस्ट करोगे, या किसी बच्चे को 60-70% आ रहा है, उस पर इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि ग्रोथ के चांसेस वो 60 वाले के ज्यादा है। 90 वाला 10 घंटे पड़ेगा तो 93%, 94% लेके आएगा। वो 60 वाला 4 घंटे पड़ेगा, 85 तक पहुंचेगा। सो वो लो बीटा वाले बच्चे होते हैं जो उतना घूमते नहीं है, लेकिन वो स्टडी होते हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग ऐसा। सो ITC के लिए तो ITC इज लाइक मैं बैठा हूँ, आप लोग खेल लो, ऐसा सिचुएशन है इसके। हाउ मच SL शुड वी कीप फॉर प्रीमियम डीके? आई गेस प्रीमियम डीके वाला कॉन्सेप्ट तो ऑप्शंस का है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो मतलब आई थिंक यू कैन नॉट ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी, यू नो, विद ऑप्शंस। इसको सिर्फ स्पॉट मार्केट पे ट्रेड कर सकते हो, इफ यू आर आस्किंग दैट, राहुल, राइट? Ravina is asking, what is the initial amount for starting investment in stock market? Say if you are new, then I think आपकी जो भी इनकम है ना, उसका 20% आप स्टॉक मार्केट से स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो भी नेट इनकम है उससे आप कर सकते हो 20-30%। बाकी आपके ऊपर होता है। इफ यू डोंट हैव लायबिलिटीज, लोन्स, तो आप 30-40 पे भी जा सकते हो, राइट? बट आई थिंक इनिशियली इफ यू आर न्यू, बिकॉज यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो you can start with 20-30%. Basically, Rahul, you are an intraday trader on event days. That's really good. So I think, Rahul, you can either talk to me in person, because ये strategy आप इस तरह से directly नहीं use कर सकते, because obviously this is not made for that. Right? So does anyone have any other questions or comments or feedbacks or suggestions or anything you would like to say? What will be our RSI to sell the stock, or we should follow 20% stop loss? See, exit के लिए आप RSI रीडिंग मत देखो, राइट? क्योंकि वो मैंने उस तरह से डिजाइन नहीं किया। RSI देखोगे तो नेक्स्ट मंथ हाई चांसेस होगा कि वो ऊपर की साइड जाके क्लोज करेगा, राइट? बिकॉज वो 2 पीरियड का RSI है। अगर एक भी ग्रीन कैंडल बन गई तो शूट अप कर देगा। उसकी फॉर्मूला ये है, इफ यू सर्च ऑन द इंटरनेट, तो इट इज लाइक दैट। सो या, यू फॉलो दैट 20% रूल फॉर द स्टॉप लॉस, एंड यू कैन ट्रेल योर SL, और आप उसको करके प्रॉफिट भी ले सकते हो। Okay. Now I think people will get more clarity on how to
efficiently diversify their portfolio, how to start their portfolio initially. Yes, that's true. See, the thing is that कि आपको diversification वो सब तो ठीक है, but I think end of the day you should learn, and of course after you are learning this you should implement. That's more important. Action is important. मैंने step 4 का PPT पे कहीं पे slide नहीं रखा है क्योंकि वो आपको करना है, आप सबको करना है. If you really like this, then you can obviously drop us a 5-star Google review. That would motivate us a lot. And अगर पसंद आया then you start with a small amount. You test it out. If it suits your psychology, आप अच्छे से इसको समझ रहे हो, आप उतना कर सकते हो, then just go ahead and start doing it. थोड़ा research करो and then you start with a small amount of capital. So that is, my take. Okay. So I think Jay has given everything. So introduction तो अभी कुछ देना नहीं है. We are into totally fully automated algo trading. We are a desk situated in Vadodara, Gujarat. Right. So if you guys are nearby and plan to visit us, feel free to, and you can connect with us on this number or email ID. Right. I'll be happy to answer to your queries anytime. Right. So मेरे end से अभी इतना ही है. Anything else from you guys? No, sir. Yeah, for today. Thank you so much. Now I think president of our club, Ruchi, will take over. Ruchi, please. Hello and good evening, everyone. Myself, Rotaract Ruchi Chandak, president of Rotaract Club of Ahmedabad Transcend. So firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker of the event, Mr. Nisar Kotecha, on behalf of the Rotaract Club of Ahmedabad Transcend family and the youth wing of Rotary Club of Kankarya also. We are also inspired by your great words, and special thanks to the project chairman, Rotaractor Janani, and Ruchi, we lost you. Professional Service Director, Rotaract. Hi, am I audible? Yeah, you are. We lost you. Okay. Okay, no worries. I'll start again for sure. Okay, so sorry for the network issues. Good evening, everyone. Myself, Rotaractor Ruchi Chandak. I'm the president of Rotaract Club of Ahmedabad Transcend. And firstly, I'll like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker of the event, Mr. Nisar Kotecha, on behalf of Rotaract Club of Ahmedabad Transcend family. We are definitely inspired by your great words and learned a lot. Special thanks to project chairperson Rotaractor Janani for making this event possible, and Rotaractor Hitangshi Shah, our professional service director, for your constant support throughout the event. And a wide round of applause and thanks to all the participants who made the event, for your presence, for making the time to be with us and helping us to make this event a great success. Thank you, everyone. And this the Stock Street group will be always active. You can ask your questions and queries or anything there, and whosoever is having the knowledge regarding it will reply you as soon as possible. Thank you, guys. Thank you so much, everyone, for spending your Saturday night, your weekend night with us and hearing the great Mr. Nisar. Also, adding more to Ruchi's point that we conducted Stock Street Part 1 and the group is full now with 256 participants in the group, and we have made 2 groups of that Stock Street event, and both the groups are super hyperly active. All the Rotaractors are in that group, and it is that much active that sometimes we need to keep that group's notifications on mute. So it is very much interactive for all of you. There is no hierarchy in that group, so whoever poses, whoever wants to ask questions, whoever wants to give the tips or whatever, just put it in the group, and anybody from the group will be happy to answer that. And once again, thank you very, very, very much, Mr. Nisar sir, for for spending your valuable time and your invaluable knowledge with us. Thank you so much, sir. Yeah.
Thank you guys for having me. And I'll be open to other opportunities in future as well. I hope that we connect again very soon. Sure. We will. We will also meet one fine day, if possible. Definitely. So yeah, thank you participants for listening me and having me again. It is a Saturday night, so I really hope you enjoy your evening with your family and friends. Goodbye and take care. Goodbye, sir. Take care.